Hey, hi everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? So I hope you are fit, fine and doing very well. And we have almost covered the race program for the paper one, and I hope you all liked it. You all were living up to the race. You all were running fine. And today we are going to begin. In fact, we have begun paper number 2. Right now, see, this is where the difference comes, and this is where actually do you score. Like it is said that in paper 1 the syllabus is quite static, right? And it is this paper 2 which is, it is said that it is the decider, right? It decides, you can say, uh, the difference between 250 marks and the difference between 300 marks. Mostly, if you see the previous year topper copy, you will find toppers are generally, you can say, taking a big lead in what, in paper number 2, right? So that is why I always tell my students to focus on paper 2 very well, because this is where the, you can say, scope of innovation comes, right? This is where you can say the more, you can say, hard work comes, और हार्ड वर्क से ज़्यादा मैं बोलूँगा होमवर्क comes, right? And if you see in paper 1, right, if you see in paper 1, if you try very very hard, you can hardly increase your marks to 10 to 15 marks. But if you try with the same amount of effort in paper 2, marks can increase more than 50. I am telling you, that is what is the you can say advantage of paper 2, right? And the best part about paper 2 is that paper 2 is conceptually very simple, right? There are no big concepts in it, right? Conceptually it is very very simple, right? Just a few parts of comparative politics, वो भी बहुत easy है, ऐसा कुछ नहीं, right? But language wise it is, you can say, more tough. Why tough? Because in paper 2 you need to write in that diplomatic language, right? So you need to have that vocabulary, and this is where that vocabulary matters, and this gives you extra marks, right? Now what kind of vocabulary I am talking about, we'll be seeing in articles to come, right? Just now we'll take an experiment, right? And this you need to develop. So this is generally developed by reading a lot of articles. If you read a lot of articles, I'll be telling you the sources like Observer Research Foundation, like Kootaniti, like all these articles I discuss in my class, right? But still, if you want to cover it on your own, you should read these articles. And when you read these articles, then you will learn a lot of different good diplomatic words, and that is what I called as the diplomatic vocabulary. And then you apply those diplomatic words into your simple answer to make it look a little bit of, you can say, a complex or you can say a diplomatic answer, right? एक IR का जो स्टैंडर्ड आंसर होता है वो आपका बन जाएगा, ठीक है? द प्रॉब्लम विथ ऑल ऑफ अस इज दैट वी ट्रीट IR इन पॉलिटिकल साइंस एज GS वाला IR. अब GS वाले IR एंड यहाँ पे IR में कॉन्सेप्ट तो चेंज होंगे नहीं, राइट? इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन GS में है वो ये PSIR में ऐसा तो नहीं, यहाँ पे दे हैव अ वेरी फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है? एंड सडनली पॉलिटिकल साइंस में जैसे घुस गए तो ले भाई वहाँ दे हैव यू कैन से वेरी वेरी एनिमी रिलेशन, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है? वैसी के वैसी रिलेशन है, राइट? ठीक है? इनफैक्ट इन IR इफ़ यू जनरली सी लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा पाकिस्तान से एक ही जैसा है, राइट? सेम चीज़ गोज़ फॉर चाइना, ठीक है? क्या चाइना की जो अभी गलवान वैली की प्रॉब्लम है ये आज की है क्या? नहीं, दिस इज़ एन ओल्ड प्रॉब्लम, 1960s 1950s से ये प्रॉब्लम से है, राइट? बस स्पॉट चेंज हो रहे हैं, कभी गलवान वैली होता है, कभी चुम्बी वैली होता है, कभी वो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, कभी वो कहीं हो जाता है, राइट? सो इन IR इफ़ यू सी द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी ईजी, बट इट इज़ द लैंग्वेज दैट मेक्स द पेपर टफ, एंड यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं. कॉन्सेप्ट तो उन्होंने समझ लिए,
अब लैंग्वेज दे राइट इन देयर ओन देसी लैंग्वेज, एंड बस देसी लिखोगे तो फिर भाई फिर देसी मार्क्स आएंगे आपको, ठीक है। एग्जामिनर देसी पी के फिर आपको मार्क्स देगा, राइट। यू नीड टू ब्रांडेड, समझ लो, ब्रांडेड इज एक्सपेंसिव, ठीक है, एंड इसी के ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। एंड ब्रांडेड इंक्लूड्स अ गुड सेट ऑफ वोकैब, ठीक है। तो कभी भी अगर आप टॉपर की कॉपी देखो एंड इफ़ यू कंपेयर इट यू विल फाइंड यार पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट घुमा फिरा के मैंने भी यही लिखे हैं, हाँ है ना, बट नंबर इसके ज़्यादा कैसे हैं मेरे भाई? नंबर इसके ज़्यादा इसलिए हैं बिकॉज ही हैज़ रिटन दैट पॉलिटिकल साइंस वाला वोकैब, एंड वो वोकैब अब कहाँ से बनेगी? तो उसका सही जवाब है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अगर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे सो डेफिनेटली यू शुड बी रीडिंग आर्टिकल्स फ्रॉम हियर, एंड हिंदू से लेके आप कह सकते हो इंडियन एक्सप्रेस, ये सब स्टार्टिंग के लिए सही है, राइट। बट इफ यू वांट टू गो अ लिटिल हायर, अ लिटिल यू कैन से डीपर, राइट, देन दिस इज द वेबसाइट. That is why I always suggest my students to read the Observer Research Foundation website. Daily अगर आप एक आर्टिकल भी पढ़ोगे, right, and if you are reading it for the past, let us say 5 to 6 months, let us say 150 to 180 articles, man, तुम्हारी वो कैप कहाँ से कहाँ होगी. And these 180 articles are generally कितने topics होंगे? 10 से 15 topics, not more than that. They keep repeating the same thing again and again and again. तो बस आपका यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है. But always remember, many of you are watching this videos for the first time. What mistakes students do? Day 1 political science पढ़ना स्टार्ट किया, प्लेटो पढ़ा नहीं है, and they go to RF, ORF and they start reading. And भाई वहाँ उन्हें एक पैसे का समझ में नहीं आएगा, and then they look for switching the optional. That is why Observer Research Foundation को आपको stage 2 पे पढ़ना चाहिए. When you have read one time PSIR, you know the basic theories, right? आपने standard notes, books वगैरह को पढ़ लिया है. Then you want something extra. तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के आर्टिकल से आपकी पेपर 2 की वोकैबलरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, राइट. एंड इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग ORF एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स आउट ऑफ देम, राइट, तो आप इसको कवर कर सकते हैं एंड आप यू विल बी गेटिंग व्हाट यू नीड टू राइट. गुड सेट ऑफ इंट्रोज, गुड सेट ऑफ कंक्लूजन्स, गुड सेट ऑफ स्कॉलर्स, गुड सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, सब आपको यहाँ पे ORF में मिल जाएगा. प्लीज़ रिमेंबर दैट. सो आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट फॉर पेपर 2 यू जस्ट नीड टू गो फॉर one source. What is that one source? One source is the international relations news, and that news you can go for ORF और वेबसाइट बताओ कूटनीति, बस ये देख लो. और थोड़ा बहुत अगर कभी लगे तो डिप्लोमेट भी देख सकते हो, हालांकि कभी कभार आई डोंट सजेस्ट, बट ठीक है देख लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. ORF, कूटनीति, डिप्लोमेट, या आप कोई और साइट भी देख सकते हो, ठीक है. मैं तो आई जनरली लुक एट जस्ट द 2 साइट्स, ठीक है, इसी में ही इतना ही ऑब्जॉर्व नहीं होता, ठीक है. कभी कभार डिप्लोमेट देख लिया, ठीक है. बाकी बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, इफ़ यू वांट आप आराम से देख सकते हो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, राइट. एंड ORF में अगर आप देखोगे तो हर्षवी पंत, ठीक है, आपका समीर सरन, राइट, ये सब राइट आर्टिकल लिखते रहते हैं, ठीक है, आपको दिखते रहेंगे. सिमिलरली अगर आप और स्कॉलर्स हैं तो सी राजा मोहन, ठीक है, ये आपको इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू एंड और जगह जगह पे आर्टिकल्स लिखते हुए दिखाई देंगे, राइट. तो इनके आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट. बुक्स के लिए आई डोंट सजेस्ट एनी बुक फॉर पेपर नंबर 2, स्पेशली बी पार्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डायनेमिक, एंड व्हेन इट इज़ वेरी वेरी डायनेमिक देयरफॉर यू डोंट नीड टू स्टडी एनीथिंग एल्स, ठीक है. नो बुक कवर्स इट, नो बुक, ठीक है, क्योंकि जब तक बुक आती है फिर से चेंज हो जाती है, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट ऑफ विद ORF को देखते हैं कैसे इसको कवर करना है, ठीक है. एंड लेट्स सी ORF को यहाँ पे देखते हैं. तो जब आप ये ORF का ये वेब पेज आएंगे, दिस इज़ द फ्रंट जो आपका इंटरफेस है, राइट, ORF का, ठीक है. एंड सिंपली अगर आप यहाँ पे ब्राउज करेंगे, ठीक है, सिंपली अगर आप नीचे आएंगे तो देखो आपका शुरू हो जाएगा यहाँ से आर्टिकल्स, ठीक है. जैसे ब्रिक्स डायलॉग ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, तो अगर आप इसको इफ़ यू वांट टू क्लिक तो आपका सिंपली ब्रिक्स का आ गया, राइट. अब यूट्यूब पे वीडियो है, बट ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच ऑन यूट्यूब तो आप इसको रीडिंग कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है. बट देखो अब इतना सा अभी पैरा अगर आपने पढ़ा तो देखो आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ. क्या पढ़ो? द वर्ल्ड इज़ फेसिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रक्चरल पावर शिफ्ट, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड abusive governments to inter and intra-state conflicts that perennially jeopardize international stability.
अब देखा, यही लैंग्वेज आपकी रिक्वायर्ड है, ठीक है। कैसे कैसे देखो इसमें कितने वर्ड्स हमको मिले, क्या, स्ट्रक्चरल पावर शिफ्ट्स, पहला कीवर्ड जो आपको मिला, राइट, मिला है नहीं, ठीक है, मिला। फिर उसके बाद ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दूसरा मिला। इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को क्या बोलेंगे, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, हाँ है ना। फिर उसके बाद देखो अब्यूजिव गवर्नेंस, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, अब्यूजिव गवर्नेंस, ठीक है। देन उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स दैट पेरेनियली जियोपार्डाइज इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपको मिला फोर्थ वो आपको, ठीक है, यानी परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली जियोपार्डाइज इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब उसके बाद आप यहाँ पे और पढ़ो, देयर इज अ रियलाइजेशन दैट दीज चैलेंज कैन नॉट बी फेस्ड बाय इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स एंड अ नीड फॉर द ब्रिक्स कंट्रीज टू जॉइन टुगेदर, कम टुगेदर एज अ मिनीलेटरल एंटिटी टू कोलैबोरेट एंड फाइंड सॉल्यूशंस टू काउंटर दिस थ्रेट, हाँ है ना। तो ये है। अब सिमिलरली यही चीज़ कहाँ पे भी लिखी जा सकती थी, यही चीज़ यू कुड हैव रिटन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नीड फॉर ब्रिक्स की जगह आप कुछ भी लिख दो, आप लेटर से यूरोपियन यूनियन कंट्रीज लिख दो, ठीक है, आशियान कंट्रीज लिख दो, ठीक है, आशियान कंट्री, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका यहाँ बन रहा है, समझ। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट कॉड लिख सकते हो कि भाई मल्टीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस है, स्ट्रक्चरल पावर शिफ्ट्स है, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, ट्रांसऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, अब्यूसिव गवर्नेंस है, हाँ है ना। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल स्टेबिलिटी परमानेंटली जियोपार्डाइज हो चुकी है। ये चीज़ अकेले नहीं लड़ सकते, हेंस वी नीड टू कम टुगेदर एज अ मिनीलेटरल एंटिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मिनीलेटरल एंटिटी का यहाँ पे इसको, राइट। तो ये आपका किसका में इंट्रोडक्शन हो सकता है, दिस कैन बिकम एन इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके सिलेबस में है पेपर नंबर 2 में, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे आपको अच्छा खासा मिल गया। अब यही चीज़ क्या है, आपको अपनी एक डायरी में इन कीवर्ड्स को लिख लो बस, ठीक है। स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल पावर शिफ्ट, ठीक है, 1 कीवर्ड। सेकेंड कीवर्ड आपने लिख दिया पेरेनली जियोपार्डाइज इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, बस। नाउ व्हेन यू आर ट्राइंग टू make a diary or a sort of you can say copy, जहाँ पे सिर्फ आपके 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कीवर्ड्स हैं, तो डेली उन कीवर्ड्स को देना आप रिवाइज करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो वोकैब है वो बढ़ती जाएगी, राइट। देखो इन द एंड रटना ही है। अगर आपको ये कीवर्ड्स याद नहीं है, ठीक है, तो आप कभी भी इसको नहीं लिख सकते। एंड ऑब्वियस ही बात है, कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में कैसे जाती है, सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला विच आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दैट रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग्स। इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट इन समथिंग, यू हैव टू रिपीट, यू हैव टू रिपीट। सेम चीज़ प्लेटो ने बहुत साल पहले फंक्शनल स्पेशलाइजेशन प्लस नॉन इंटरवेंशन के फॉर्म में कह दी थी, ठीक है। क्या था फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वही काम करता रहे, एक ही बंदा एक काम करेगा उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाएगा, खत्म एज दैट, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो प्लीज़ ट्राई टू मेक योर नोट्स लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। तो ORF से जो भी आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं तो इसी फॉर्म में बनाए, इंट्रो इसी फॉर्म में बनाए, कंक्लूजन इसी फॉर्म में बनाए, वोकैब, बस इंट्रो कंक्लूजन वोकैब, और इफ़ यू वांट तो थोड़ा बहुत स्कॉलर। ये तरीका होना चाहिए आपको नोट्स बनाने का, ठीक है। सो दैट जब भी अगर आपको पेपर से पहले रिवाइज करना है, बस जल्दी आपने इंट्रो देख लिया, ठीक है, कंक्लूजन देख लिया, वोकैब देख ली, स्कॉलर देख लिए, बस। अब वहाँ पे यार कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको क्लास में बता ही दिया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बस हम यहाँ लगा देंगे, हाँ है ना, ठीक है। बॉडी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस टाइप से, उस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। ये चीज़ तो मेरे भाई स्टैटिक हो गई ना, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डूइंग योर होमवर्क, ठीक है। ये लोग करना नहीं चाहते, एज इट इज़ पेपर में वही पटके हुए, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है। इफ़ यू लुक, अगर आप पढ़ेंगे तो इसे पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे वो चीज़ मिलेगा, होगा एक इंसाइट मिलता है, ठीक है, एज अ मिनीलेटरल एंटिटी। तो ये आप लिखा जा सकता है हर चीज़ को, ठीक है। सिमिलरली लेटर से इस पे आ गया जाए, इंडिया, ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब पे आ गया तो क्या लिखोगे, सेम चीज़ लिखा जा सकता है। द जाए कंट्रीज दे नीड टू कम टुगेदर टू, you can say, as a minilateral entity to collaborate and find solution to counter this threat, सिंपल, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो,
ठीक है। तो ORF के आर्टिकल्स को आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड सी क्या इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप आओगे नीचे, ठीक है, अब देखो COVID-19 एंड चैलेंजेस टू इंडियन फेडरलिज्म। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेटली इसमें से एक दो की पॉइंट हम निकाल सकते हैं कि कैसे इंडियन फेडरलिज्म हमारा चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू COVID-19। अब इंडियन फेडरलिज्म किसका पार्ट है? इंडियन फेडरलिज्म इन पेपर इज अ पार्ट इन पेपर नंबर 1। हम इंडियन फेडरलिज्म को पेपर 1 में पढ़ते हैं, राइट, ठीक है। तो चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म आया, अब सब बच्चे घुमा घुमा के वही 2-4 पॉइंट लिख रहे हैं। आपने एक पॉइंट लिख दिया COVID-19 का भी, एन एग्जामिनर के बिल्कुल कान खड़े हो गए। 1 पॉइंट दैट सेपरेट्स योर आंसर फ्रॉम द रेस्ट इज दिस COVID-19 चैलेंज, है ना, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ थोड़ा सा अगर भी आप लिख दोगे, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ पे एक सिर्फ ओवरव्यू पढ़ लेते हो, राइट, 1-2 पॉइंट्स भी आप निकाल देते हो, तो भी आप यहाँ पे खेल जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लीज़ इसको पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। यू डोंट नीड टू गो इन डीप कि पूरे पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, एंड आप कह सकते हो पूरा यू आर गोइंग, पूरे दिन आप ये कर सकते हो, ठीक है। बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। अब जैसे ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, इतने बड़े आर्टिकल को जनरली नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट स्टिल अगर आप जल्दी ऊपर से रीडिंग फास्ट अगर आप कर सकते हो, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे फेडरलिज्म का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का दिया जाता है, दैट इट इज सेड इन ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इतना ज़बरदस्त एग्जांपल था, उन्होंने इसकी मदद से पूरे के पूरे वायरस को मार दिया, ठीक है। जबकि इंडिया में इंडियन फेडरलिज्म उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, राइट। जैसे बस आप यहाँ पे ये की पॉइंट अगर आप लिखोगे तो आपको यहीं से समझ में आएगा। फर्स्ट फेज में सेंटर का क्या रिस्पॉन्स था कि भाई वी विल गो फॉर सेंट्रल यूनिलेटरलिज्म, स्टेट ऑटोनॉमी, ठीक है, स्टेट सब कुछ डिसाइड कर रहा है, पुलिस वगैरह सब कुछ आप देखो सेंटर ही कर रहा था, ठीक है। बट इनसे संभला नहीं। जैसे ही सेकेंड वेव आई क्या हुआ? स्टेट डर गया, ठीक है, सेंटर डर गया और तुरंत से डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। मोदी जी ने साफ कह दिया भाई पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, मिनी लॉकडाउन लगाना स्टार्ट कर दो, हर स्टेट अपने अपने से देखो। तो डिसेंट्रलाइज वे में इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, ठीक है। देयर वाज अ यूनिलेटरल डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम यूनिलेटरल सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग इन द फर्स्ट वेव टू समथिंग दैट अप्रॉक्सीमेट यूनिलेटरल डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। बस ये पॉइंट अगर आपने आंसर में लिख दिया, डेफिनेटली योर आंसर स्टैंड्स अपार्ट, योर आंसर स्टैंड्स अपार्ट एंड इट क्लियरली सेज कि ये इट क्लियरली प्रूव्स दैट आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बिना यू कैनॉट कॉम्बैट, यू कैनॉट इरेडिकेट कोविड, ठीक है। आप कोविड से नहीं लड़ सकते, राइट। तो इसीलिए आप कह सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन करने की ज़रूरत है, राइट। सेम गोज फॉर इन द वैक्सीनेशन पॉलिसी, ठीक है, जहाँ पे यूनिवर्सल सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, बट डिसेंट्रलाइजेशन आप कह सकते हो वैक्सीनेशन होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए देन यू कैन टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन एंड द रोल ऑफ थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन गिव, जैसे केरला का एग्जांपल दे सकते हो, इट अलाउड लोकल बॉडीज टू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंडक्ट हेल्थ कैम्प, सैनिटेशन ड्राइव, ठीक है, सैनिटाइज पीपल, ठीक है, सेंसिटाइज पीपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो केरला का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। ओडिशा गवर्नमेंट डेलीगेटेड द सरपंच विद द पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स एंड ओवरसीज फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म। तो बस ये 2 एग्जाम्पल अगर आप दे दोगे केरला ओडिशा का, बस योर आंसर इज डन, ठीक है। अब सेम, अब देखो दिमाग कैसे लगाना है, ये चीज़ आपने पढ़ी। सिमिलरली सेम चीज़ यू कैन राइट इन पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज इन पेपर 1, राइट। तो अगर आप देख रहे हो तो आपने पेपर 1 के एक पंचायती राज में जैसे लिखा जा सकता है हाउ वर द पंचायत्स वेरी इफेक्टिव इन कोविड मैनेजमेंट। तो जस्ट यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ ओडिशा, ठीक है, एंड सॉरी इट्स ओडिशा, चलो, एंड केरला, ठीक है। बस ये आपने दिया, बस डन, ठीक है। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इनका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा कोविड में, एंड कहा गया कि भाई देखो इन्होंने कितना अच्छा कंट्रोल किया है, ठीक है। सो इट्स वर्थ मेंशनिंग इज द कोलैबोरेशन बिटवीन द ब्रिनन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड द मुंबई पुलिस, ठीक है। तो इन्होंने दे सुपरवाइज द क्वारंटीन प्रोसीजर, ठीक है, एंड बीएमसी का काफ़ी अच्छा रोल देखा गया था। एंड इनफैक्ट बीएमसी के ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स को बुलाया गया था कि वो आएँ दिल्ली वगैरह में, ठीक है, इनको ट्रेन करें, दिल्ली के म्यूनसिपैलिटी वगैरह को, ठीक है, एमसीडी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वगैरह को ट्रेन करें, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो, ठीक है। बीएमसी रिपीटेड द फीड ड्यूरिंग द सेकेंड वेव बाय क्विकली इनोवेटिंग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, एक्सपेंडिंग मेडिकल कैंप्स, ठीक है। तो इस तरीके से वॉर लेवल पे इन्होंने क्या करा, वार्ड लेवल वॉर रूम्स, ठीक है, वॉर फुटिंग पे इन्होंने करा, ठीक है। तो आप कह सकते हो द डिसेंट्रलाइज्ड रिस्पॉन्स बोर फ्रूट्स एट द लोकल लेवल वेयर द गवर्नमेंट्स हैव डेलीगेटेड पावर्स एंड ट्रस्टेड दी सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस।
यानी दिस पॉइंट प्रूव्स दैट फेडरलिज्म इज द अल्टीमेट यू कैन से गवर्नेंस स्ट्रैटेजी टू डील विथ कोविड। क्योंकि भाई नहीं पता चलेगा कहाँ से क्या हुआ है, लोकल पीपल को ही पता चलेगा कौन सा बंदा कहाँ मूव करा है। अब प्राइम मिनिस्टर कहाँ से देखेगा कि अगर A% मूव करता है B से, ये सिर्फ लोकल लेवल पे ही ट्रेस किया जा सकता है। अब लोकल में भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर थोड़ी ना करेगा, आपके लोकल पंचायत लोग, वार्ड मेंबर, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला वार्ड, ठीक है, मोहल्ला सभा, वो ट्रेस कर सकती है, ग्राम सभा, तो इनका रोल बढ़ जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यू कैन राइट। अब ये सब अगर आप आंसर में लिखोगे रादर देन जस्ट स्टैंडर्ड जो वही पुरानी कमिटीज़ के रिकमेंडेशन है, तो डेफिनेटली आपका आंसर यहाँ पे स्टैंड आउट होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन से राइट, ठीक है। एंड येस, परहैप्स नो अदर crisis in India in the Indian contemporary history has tested the country's federal system more ever than the COVID-19 pandemic, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप ये पढ़ो, ठीक है। एंड इट हैज़ रिवील्ड द क्रूशल रोल ऑफ फेडरल ब्रिजिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे कोविड-19 को आप कह सकते हो फेडरल, इट हैज़ टेस्टेड द इंटायर फेडरल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। बस हो गया। अब सोचो फेडरलिज्म पे S से लिखने को आता है, ठीक है। एंड आप कह सकते हो आप कह सकते हो कि कुछ भी आता है यार, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली लिखना, ठीक है। तो आई होप ये आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से इफ़ यू कैन सी देर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स लाइक नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट लैटिन अमेरिका, देर इज़ एन आर्टिकल ऑन लैटिन अमेरिका। इफ़ यू क्लिक दिस राइट एंड इफ़ यू रीड अबाउट दिस यू विल गेट अ लॉट ऑफ सब्सटेंस इन दिस, राइट। बट अगर आपको लगता है दिस इज़ वेरी वेरी लॉन्ग एंड यू डोंट वांट टू रीड दिस बिग आर्टिकल्स, तो छोटे आर्टिकल्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे अब आप नीचे देखिए, रिसेंटली दे हैव अपडेटेड ऑन यू कैन से द changing dynamics in Central and the South Asia, right? The role of Uzbekistan, you can talk about this, right? Then India Mukt Afghanistan is a recipe for disaster. So India and you can say Afghanistan relationship, right? Just open this and see, right? Now recently there was a drone attack, right? तो on Jammu airport, तो इस पे इंडिया के डिफेंस वगैरह पे आर्टिकल्स आते रहते हैं, राइट। ड्रोन अटैक्स के पाया, पाकिस्तान गेम्स इन अफगानिस्तान, बहुत सारे आते रहते हैं। इंडियाज अफगानिस्तान चैलेंज, दी हर्षवी पंत हैज रिटन। So any article if you click, right, the future of India EU relationship, right, and you can read about this, ठीक है। तो आपको बहुत सारा इसमें से वर्ड्स, राइट, एंड आपको बहुत सारा यहाँ पे यू कैन से की पॉइंट्स, राइट, स्कॉलर्स वगैरह, ये सब आपको दिखाई देंगे, राइट। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। सो यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दैट हाउ यू कैन से one can score good marks in the international relations aspect, right? Similarly, if you see, अगर मैं सिर्फ इसको ब्राउज कर रहा हूँ तो I can see aim to build a more compact relationship. So ये compact relationship आपका एक कीवर्ड हो सकता है, right? अगर आप सिर्फ जल्दी से ऊपर देखोगे तो भी अगर आप काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको बहुत सारा पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको आर्टिकल पूरा इतना इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जस्ट ऊपर से देख के भी आप निकाल लोगे तो भी आपका यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। इन सिमिलरली यू कैन, व्हाट आई मीन टू से इज रीड वाइड आप पढ़ने की कोशिश करो रैदर देन बहुत डीप पढ़ लें। एक ही आर्टिकल पे PhD करने से अच्छा आप 2-3 आर्टिकल को क्विकली ब्राउज करके थोड़े बहुत की पॉइंट्स निकाल लो, ठीक है। एंड एक सेपरेट कॉपी को आप डेफिनेटली बनाएं। सेम चीज़ गोज फॉर कूटनीति। इफ़ यू गो फॉर द कूटनीति आर्टिकल्स ऑल्सो, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, यही अप्रोच रखी जा सकती है, ठीक है। इफ़ यू सी कूटनीति के बारे में अगर आप देखेंगे तो कूटनीति का भी यही ओपिनियन है, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आपको नीचे इफ़ यू ब्राउज तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारा मिल पाएगा, ठीक है। हांगकांग के प्रोटेस्ट पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और नीचे अगर आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब ये लोग तो यार IR के तरीके से लिखते हैं, ठीक है। बट आपको पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं देखना, आपको इंडिया एंड द IR देखना है, ठीक है। अब जो अपना नहीं है, ठीक है, तो वो छोड़ो, हांगकांग वगैरह का छोड़ो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हटाओ, ठीक है। तो आप जो और ब्राउज करेंगे जैसे इटली, इंडिया, जापान, ठीक है, दे कम टुगेदर फॉर प्रॉस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक का आपको ये अच्छा आर्टिकल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं, राइट। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ डोंट रीड यू कैन से थिंग्स विच आर इररेलेवेंट। यहाँ पे बहुत सारा इररेलेवेंट पर्सपेक्टिव भी मिलता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब जैसे ये है इंडिया, इटली एंड जापान, ठीक है। तो इनका काफ़ी अच्छा है, आपको यहाँ इंटरप्ले दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ें, ठीक है। डेफिनेटली आपको इंडियाज़ विजन फॉर इंडो पैसिफिक, जैसे PM मोदी का फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक वगैरह मिलेगा, ठीक है। फिर सागर एंड इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब अगर आप देखो, इंडिया स्टैंड फॉर ओपन, बैलेंस्ड, रूल बेस्ड,
एंड स्टेबल ट्रेड इन्वायरमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, तो ये आप यहाँ डेफिनेटली लिखते हैं, ठीक है। तो ओपन, इंक्लूसिव, नॉन ट्रीटी बेस्ड ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक है। देखो क्या आपको कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, तो इस तरीके से आप डेफिनेटली यहाँ पढ़ें। बाकी आई विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग विथ यू, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड कोई भी अगर आपको इशू डाउट्स वगैरह हो तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।